So chromatography, as we know, is a technique that is basically used for separation of a mixture. है ना? If we have a mixture, we can separate the components and then individually identify them. The basic principle is it works by allowing the molecules to distribute themselves between the stationary and mobile phase. And there is actually a different partitioning of the mixture के components between stationary and mobile phase. The ones who are tightly bonded to the stationary phase or they are interacting more with the stationary phase stay behind. The ones which are more bonded to or the ones which interact with the mobile phase, they are carried further or forward with the mobile phase which is moving further away. Then some important terms, basically for your TLC and column chromatography. The mobile phase is basically the solvent which moves through the stationary phase, through the components of the mixture. और वही जो मिक्सचर का कंपोनेंट बच्चे ज्यादा इंटरैक्ट करेगा मोबाइल फेज के साथ, मोबाइल फेज के साथ साथ वो आगे चल पड़ेगा. स्टेशनरी फेज होता है दैट सरफेस ऑन विच यू आर अप्लाइंग द मिक्सचर, है ना, जिसके ऊपर से जब मोबाइल फेज पास करेगा तो इट विल कैरी अलोंग दैट कंपोनेंट जो मोबाइल फेज के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करेगा. जो स्टेशनरी फेज के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करेगा वो पीछे की तरफ या स्टेशनरी फेज के ऊपर वहीं जाके एब्जॉर्ब्ड रहेगा. So this is how the partitioning of the components takes place. Then basically for your column chromatography we have these two terms, eluent and eluate. Eluent होता है that once your components are separated out, वो separation के बाद उनको बाहर भी निकालना होता है. तो वो components को एक एक करके बाहर निकालने के लिए we use different solvents or even a mixture of solvents. Those solvents are called as eluents. Analyte होता है the mixture which we apply, the spot which we apply or the mixture which has to be separated and analyzed. First, talking of the simple paper chromatography, which you might have done in your school, है ना? That is the ascending paper chromatography. बच्चे इसको ascending paper chromatography क्यों बोलते हैं? Because here the solvent or the mobile phase it rises upwards against gravity, है ना. अगर आप उसी सॉल्वेंट को ऊपर रख दोगे और उसको नीचे की तरफ लेके आओगे इट बिकम्स डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी. बट जो हाँ नॉर्मल हम करते हैं जो आपने देखा है लैब में, दैट इज योर असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी. Now, the filter paper or the paper that we basically used for this purpose is a Whatman filter paper. अलग अलग ग्रेड्स होते हैं इसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द पोर साइज. नाउ अब इसमें भी क्या होता है बच्चा, एज बी से हमारा मिक्सचर सेपरेट कब होता है. अब हम क्या करते हैं, पहले ये हमने एक बेस लाइन लिया, दिस इज द बेस लाइन दैट वी अप्लाई. यहाँ पे यू अप्लाई योर स्पॉट और योर मिक्सचर, ठीक है. देन दिस इज डिप्ड इनटू द मोबाइल फेज, दिस इज माय मोबाइल फेज, ठीक है. एंड एज सुन एज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन दिस मोबाइल फेज राइजेस अपवर्ड्स. और भाई बच्चा कंपोनेंट का जो पार्ट ज्यादा मान लो इंटरैक्ट करेगा मोबाइल फेज के साथ साथ वो आगे आगे चल पड़ता है ना. लेट्स टेक दिस इज component more getting attracting या interacting with the मोबाइल फेज. जो ज्यादा नहीं कर पा रहा वो ऐसे पीछे की तरफ रह जाता है ना. एंड लेट्स टेक फाइनली योर सॉल्वेंट हैज रिजन टू दिस लेवल, जिसको आप और भी क्या बोलते हो, सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है. ना वन थिंग टू नोट हियर बच्चे, ठीक है, मोबाइल फेज तो आपका जो भी सॉल्वेंट है आपने लिया होगा. द स्टेशनरी फेज हियर इज नॉट द पेपर, है ना. पेपर इज ओनली अ सपोर्ट. द स्टेशनरी फेज हियर is the water molecule present in the filter paper. Water molecules present in the चलो हाँ in filter paper, they act as your stationary phase, ठीक है. अब जब आपके कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाते हैं बच्चे, है ना, देयर इज समथिंग व्हिच वी हैव डन दैट यू नो दैट यू कैलकुलेट द आरएफ फैक्टर. ये आपका बेसलाइन है, दिस इज योर सॉल्वेंट फ्रंट. वी टेक द सेंटर ऑफ द कंपोनेंट ऐसे. The distance traveled from the baseline for these both components
and the distance traveled by the solvent from the baseline again. Let's take this is A, this distance is B, and this distance is C. ध्यान रखना, हमेशा जो रीडिंग लेते हैं वो आपका जो भी स्पॉट होता है उसके सेंटर से लेते हैं. इट्स नॉट फ्रॉम द टॉप और बॉटम, वी टेक इट फ्रॉम द सेंटर. And what we calculate is something called as the RF value or the retardation factor, retardation value. है ना? This is simply RF value for green spot. Would be distance traveled by the green spot divided by the total distance traveled by the solvent. That is simply A by C. Similarly, for your yellow or the mustard spot, जो RF हो जाएगा बच्चे, उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है बेस लाइन से B, और आपका ओवरऑल डिस्टेंस सॉल्वेंट का ट्रेवल कितना है C. So basically your RF values are numbers, and obviously the component which has interacted more with the mobile phase, है ना. अगर मैं इसको A भी कर लूँ, let's take this as A and this as B. My B has interacted more with the mobile phase, है ना, तभी वो solvent के साथ साथ आगे चल पड़ा. Interacted more with the mobile phase, तो उसका RF value would be higher than A. मतलब जिसका RF वैल्यू ज्यादा होता है, दैट कंपोनेंट हैज इंटरैक्टेड मोर विद द मोबाइल फेज. मोबाइल फेज के साथ साथ वो आगे की तरफ चल पड़ेगा. जितना वो आगे की तरफ जाएगा ऑब्वियसली उसका RF वैल्यू इज गोइंग टू इंक्रीज. नेक्स्ट वी मूव ओवर टू द थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी. ना बच्चे, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी में व्हाट यू हैव इज दिस ग्लास चेंबर, है ना. दिस हियर इज कॉल्ड एज अ TLC plate. Now this TLC plate, it has a layer of, है ना, इसके ऊपर एक लेयर कोट की जाती है, जिसमें light layer is coated on this, है ना. This is made up of either alumina or silica gel, the nature of which is highly polar, है ना. This is a coating of, तभी इसको thin layer बोलते हैं. thin layer लगाते हैं हम अपने adsorbent की, that is the alumina or silica. This component is highly polar and this is basically your stationary phase. It is not the TLC plate. TLC plate is only the support. So the stationary phase, है ना. अब इसमें भी सिमिलर टू पेपर क्रोमैटोग्राफी क्या करते हैं, वी लोड योर मिक्सचर हियर, जैसे ये लगाया हमने अपना स्पॉट, है ना. वी डिप इट इनटू अ मोबाइल फेज. दिस इज माय मोबाइल फेज. एनी सॉल्वेंट which can be used for the differential partitioning, है ना. दिस चेम्बर इज क्लोज्ड फ्रॉम अबव, ताकि अच्छे से ये चेम्बर इज सैचुरेटेड विद द वेपर्स ऑफ द सॉल्वेंट. Due to capillary action, what happens? The mobile phase, it travels upwards along this sheet, है ना, and the components are separated. Again, इसमें भी वही principle. This mobile phase, पहले तो it is generally chosen which is less polar, है ना, because we need a difference in the polarities. अब क्या होगा, मानो ये mixture दो components में separate हो गया. Let's take, I'll change this thing like this. I get two spots here, spot X and spot Y. अब इसमें बचा spot X is actually that component of the mixture which is more polar, है ना. being ज्यादा polar, क्योंकि ये सिलिका जेल जो था मेरा या Al2O3 था, that was a polar component. This Y was interacting more with the silica और alumina here. तो ये क्या हुआ, ये ज्यादा ट्रैवल नहीं कर पाया मोबाइल फेज के साथ साथ, ये आपका एब्जॉर्बेंट के ऊपर ही जाके जो है, यू नो, इट स्टिक्स देयर ओनली. पर जो X था, दैट वाज लेस पोलर. being less polar, it interacted more, it was more, rather I would say, soluble with the mobile phase. This interacted more with the mobile phase. It was more soluble in the mobile phase. So ये mobile phase के साथ साथ आगे चल पड़ा, and hence the components they got separated.
तो मोर पोलर इज योर कंपोनेंट, है ना, उतना वो ट्रैवल नहीं कर पाता। कीप वन थिंग इन माइंड कि जो तुम्हारा बच्चा एड्सॉर्बेंट लगा हुआ है वो ज्यादा पोलर है ना, तो इसलिए पोलर कंपोनेंट पीछे रह गया। आपने मोबाइल फेज लिया, दैट वाज देखो लेस पोलर, दैट इज बाय द लेस पोलर कंपोनेंट इट ट्रैवल्ड विद द मोबाइल फेज ज्यादा आगे की तरफ, है ना। ये मान लो माई दिस इज माई सॉल्वेंट फ्रंट, जहां तक मेरा सॉल्वेंट राइज करा, सॉल्वेंट वाज लेस पोलर, तो लेस पोलर कंपोनेंट सॉल्वेंट के साथ आगे चल पड़ा। इसमें भी आप अपने आरएफ वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो सेम वे एज यू कैलकुलेट इन योर पेपर क्रोमेटोग्राफी। One thing to note here is there's a difference in the polarities of the stationary phase and mobile phase. Okay. The highly polar component, it gets more absorbed on the stationary phase, while the less polar one, the less polar component moves ahead with the mobile phase. And बच्चे next talking of the column chromatography, है ना। ना कॉलम chromatography as you can see, जो इसका टाइप है it's basically packed in a column, है ना। यहाँ पे क्या होता है, तो पूरा मान लो हमारा, okay, here we have some cotton plug here, है ना। then इसके ऊपर there's a layer of sand just for efficient packing, okay? यहाँ बीच में we have our silica or Al2O3, this is Al2O3 or silica, again there's a little layer of sand on the top, है ना। this is how your column is packed or it is prepared। अब क्या होता है ये देखो, है ना, मान लो I have all my silica here, okay? I put my mixture, okay? Let's take, I put my mixture here, मैंने अपना मिक्सचर ऐड किया, आई लीव इट फॉर अ व्हाइल। क्या होगा थोड़े टाइम बाद, दिस मिक्सचर इट स्टार्ट्स टू सेपरेट इनटू इट्स कंपोनेंट्स, है ना। मानो दिस इज वन कंपोनेंट, दिस इज द अदर कंपोनेंट, ठीक है। अब इसमें भी देखो इट्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, इसमें आपका मिक्सचर कहाँ ट्रैवल कर रहा है, ऊपर से नीचे, तो द वन विच इज मोर पोलर वो जल्दी एड्सॉर्ब हो जाएगा सिलिका पे, है ना। और जो कम पोलर होगा वो थोड़ा सा और ज्यादा ट्रैवल कर जाएगा बिकॉज इट इज नॉट इंटरैक्टिंग मोर, तो इसमें आपका लेस पोलर वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ आता है, इट इज अवे फ्रॉम वेयर यू हैव एडेड योर मिक्सचर, ठीक है। अब बच्चे क्या होता है, इन कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए, है ना, व्हाट वी डू इज, जैसे मान लो टेक ड्रॉ दिस अगेंस्ट वन, ये मेरा मोर पोलर कंपोनेंट था, देन आई हैव माय लेस पोलर कंपोनेंट हियर, है ना, काफी टाइम बाद सेपरेट हो गए अच्छे से। अब क्या ऐड करते हैं यहाँ से, वी ऐड आर एलुएंट्स, है ना। एलुएंट्स आर बेसिकली लेस पोलर वन, क्योंकि मेरा यहाँ मोबाइल फेस का जो स्टेशनरी फेस था एल्यूमिना सिलिका, दैट वाज हाईली पोलर, हियर दिस एलुएंट इज लेस पोलर, तो ये क्या करेगा, जैसे ये जाएगा बच्चे इट्स गोइंग टू पिक अप दिस कंपोनेंट फर्स्ट, है ना। ये इस कंपोनेंट को डिसॉल्व करेगा और अपने साथ बाहर ले आएगा, तो फिर उसके बाद आप एक एलुएंट टू डालोगे, ब्रिंग आउट दिस सेकेंड कंपोनेंट आउट ऑफ द मिक्सचर। तो बच्चे आई रिवाइज दिस कॉलम क्रोमेटोग्राफी वंस मोर, है ना। वी हैव अ कॉलम पैक्ड विद alumina और silica as the stationary phase, they are highly polar in nature, है ना, this is your stationary phase। Once you add your mixture here, the mixture
द component which is more polar it gets absorbed first, है ना, because the mixture is traveling from top to bottom. The one which is less polar, वो आगे की तरफ और जाके क्या होता है, सेपरेशन उस हिसाब से होता है, जितना लेस पोलर कंपोनेंट होगा इट मूव्स अहेड। ठीक है, काफी टाइम बाद जब पूरा अच्छे से सेपरेशन हो गया, देन इन कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए वी ऐड डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना। एलिमेंट्स हो गए बेसिकली, ऑब्वियसली मेरे स्टेशनरी फेज से कम पोलर हो गए बिकॉज वी नीड टू रिमूव द कंपोनेंट्स नाउ। तो फर्स्ट एलिमेंट विच आई ऐड इज द लीस्ट पोलर वन, ताकि ये लीस्ट पोलर वाला पहला कंपोनेंट वन ना सबसे आगे ये है, इसको हम निकाल सके। अगर मान लो मैंने कंपोनेंट टू के लिए पहले डाल दिया तो बच्चा वो अपने साथ साथ फिर वन को भी ले आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपोनेंट वन नीड्स टू बी रिमूव्ड, तो आई ऐड एन एलिमेंट विच इज द लीस्ट पोलर वन, है ना, जो सिर्फ किसको रिमूव करेगा, वन को। उसके बाद एलिमेंट टू डाला, इट विल रिमूव द कंपोनेंट टू एंड सो ऑन। दिस इज हाउ वी कैन separate all the different components. Okay, the elements which we can use are, some examples are, we can use CCl4, CH2Cl2, chloroform, methanol, we can have acetic acid. ये देखो, they are ranging from least to the most polar. This is almost non-polar, and then we have our acid as the most polar here. So different type of elements varying in their polarities can be used to remove different components. Obviously least polar के लिए आप क्या use करोगे, सबसे least polarity वाला, and then in increasing order of polarities आप अपने अलग अलग क्या use कर सकते हो, elements. Now we'll try some questions based on these. I picked up the questions from your PYQs only, है ना। These two questions are from JEE Main 2023. हाँ, जैसे फर्स्ट वाला तो ये सिंपल है। इसमें क्या है, क्रोमेटोग्राम obtained for A on a TLC plate, the total length of the TLC plate is 6 centimeters. You have to calculate the RF value for this component A. So if you notice here now बच्चे, the distance traveled by A, distance traveled by A is only 3 centimeters. देखो 0.5 पे तो बेस लाइन है, दिस इज माई बेस लाइन हियर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ओनली 3 centimeters। और अगर हम सॉल्वेंट फ्रंट निकालें, सॉल्वेंट फ्रंट आपका कहाँ होगा, इट विल बी फ्रॉम दी बेस लाइन to this component here. This is your solvent front till where your solvent has risen. The distance traveled by the solvent is 5 centimeters. देखो ऊपर नीचे 0.5 का गैप है, टोटल प्लेट का लेंथ was 6 centimeters. So solvent has traveled only 5 centimeters. The RF value here is 3/5, that is 0.6, or in terms of answer 6 into 10 to the power -1. ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज द TLC ऑफ अ मिक्सचर, है ना, दिस इज माय बेस लाइन हियर। ओके, there are 3 spots obtained, A, B and C. Now we have seen in TLC बच्चे, इसमें क्या होगा, the spot which is more closer to the baseline, है ना, here this was the most polar, ज्यादा इंटरैक्ट करा इसने सिलिका के साथ। A ने सबसे क्या करा, लीस्ट इंटरैक्ट करा, लीस्ट इंटरैक्ट विथ स्टेशनरी फेज, है ना, मैक्सिमम विद मोबाइल फेज, तभी मोबाइल फेज के साथ साथ आगे चल पड़ा। So if I talk in terms of polarity, polarity order here is A is the least polar, then I have C, then I have B. B is the most polar here. अब उसमें कह रहा है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एल्यूशन इन क्रोमेटोग्राफी, इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अभी हमने देखा कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी स्टार्ट विद द लीस्ट पोलर, है ना। तो जो मेरा लीस्ट पोलर एलिमेंट हम डालेंगे सबसे पहले, ऑब्वियसली वो किसको निकालेगा, ए को, बिकॉज ए वॉज द लीस्ट पोलर कॉम्पोनेंट, ए की पोलैरिटी सबसे कम है ना। तो हम अगर ऑर्डर लिखें अपना यहाँ पे ही कैसे हो जाएगा, सबसे पहले ए विल बी एल्यूटेड आउट, देन कंपोनेंट सी, एंड उसके बाद थर्ड जो सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब्ड है मेरे सिलिका जेल के कॉलम में, दैट इज कंपोनेंट बी, दैट वुड बी एल्यूटेड आउट।
सबसे पहले ए निकलेगा और सबसे लास्ट में बी निकलेगा, अगर यही मिक्सचर को हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में रख देते हैं, है ना। So these were some examples, some type of questions which are there in your JEE mains.